जे भुली जे चुकी साईं, जे भुली जे चुकी साईं, पीत हिंजे काडियां जिन्ना नेहो तो जाने लगा। चूर मरों से वाडिया आओ ना छोड़ो, आओ ना छोड़ो, आओ ना छोड़ो कंत पासरा। सदा रंगीला लाल प्यारा, एहो महिंजा आसरा। भगत वशल सुनो तो निराश हृदय, पतत पावन सुन आशा उर्धार हूँ। भगत वशल सुनो तो निराश हृदय, पतत पावन सुन आशा उर्धार हूँ। अंतर्जामी सुना कंपत हो अंतर्गत, दीन को दयाल सुन भय परम टार हूँ। जलधर संगम कय फल सिंबल धर्म, चंदन सुगंध सनबंध मैल गार हूँ। अपनी करनी कर नरक न पामू ठोर, तुमरो बिरद कर आसर संभार हूँ। अपनी करनी कर नरक न पामू ठोर, तुमरो बिरद कर आसर संभार हूँ। सन्मान सत्कारियो गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जीओ वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो, बड़े प्यार सत्कार सहित सर्व सुख करता सर्व दुख हरता, गरीब नवाज सतगुरु बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे रहमतां बख्शिशां बरकतां भरे पवित्र पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज गरीब नवाजियां दी पावन हजूरी विच जुड़ मिल बैठ के अथवा दूर दराडे देशां विदेशां विच बैठे हुए इंटरनेट टेलीविजन के माध्यम राਹੀਂ शब्द नाल सुरत जोड़ के जीवन दियां इन्हां घड़ियां नूं सफल बना रहे हो और गुरु के सिद्धांत नूं समझ के शब्द विच समाई करन लई यतनशील हो।
ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾਮਈ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਆਰੰਭਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝੇ, ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇ 4-5 ਜੀਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਤੁਰੇ, ਆਪ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੁੜਤੇ ਗਏ, ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ,
ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਸੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਨਾ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨੋਟ ਗਿਣਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨੋਟ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਿਣਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉੱਡੂ ਉੱਡੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਲੇ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ, ਇਹ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੁਗਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਜਾਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਖ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਰੋਗ ਹੋਏਗਾ।
कि तेनों भी इस तरह होंदा है, नाम ना लगे प्यार, बाणी पढ़ लग्या नींद आउंदी है, बाणी पढ़ लग्या टाल दिना है कि बाकी काम पहला कर लै बाद च कर लांगा, होंदा इस तरह। गुरु घर जान लग्या बाणी पढ़ लग्या इस तरह होंदा है। तैनूं इस तरह होंदा है भी जे गुरु घर गुरु की गोलक च पैसे पाउणे होण ते सब तो छोटा नोट कढ़दा है, नाच गाने भंगड़े ते वारने होण ते सब तो वड्डा कढ़दा है कि तेरे नाल इदां हुंदा है, ये खुद विचारना है। जे हुंदा है ना ते तेरे लक्षण ने मनमुखां वाले, किसी नूं पुछण दस्सण दी लोड़ नहीं, मेरा निर्णय दूजा की करेगा। ये तो खेड ही सारी अंदर दी है, मेरे अंदर नूं ते मैं जानदा है, जो गुरु जानदा है, लोकां तो ते मैं लुकाउणा है। मस्कीन साहब जी बड़ा प्यारा कोई बचन करदे ना भी बंदा अपने आप बारे सब कुछ जानता है ते दूसरे दी बुराइयां जानने की कोशिश करता है सारी जिंदगी, अपने आप को लुकाउंदा है, दूसरियां दी बुराइयां जान के उन्होंने उछालण की कोशिश करता है। जे तेरे नाल इस तरह हुंदा है कि गुर की बाणी मीठी अमृत धार, तैनूं मिठी नहीं लगती, ये निर्णय खुद करना है। तुसीं अपने घर विच निर्णय करना है भी तुहाडे घर विच सारा दिन टीवी चलदा है तो ठीक है, टीवी च की चलदा है सारा दिन, गाने फिल्मां नाटक कि गुरबाणी, की चंगा लगता है। तो जे फिल्मां चलदियां ने, नाटक चलते ने, गाने चलते ने, तो किहड़ी कैटेगरी च आपां आ गए? नाम ना लगे प्यार, भी बाणी नहीं चंगी लग रही, कीर्तन नहीं चंगा लग रहा, कथा नहीं चंगी लग रही। तो जे नहीं चंगी लग रही तो चंगा की लग रहा है? चंगी लग रही माया, पदवियां चंगियां लगदियां ने, दौलत चंगी लगती है, माया चंगी लगती है, चंगी लगती है भावें बेईमानी ना ही आ जाए, ठगी टोरी ना आ जाए, अपनी ते आई आए, दूजे की भी हड़पला चंगी लगती है ना। बारे कहते आ निशानी मनमुख होने दी है। मनमुख का लक्षण, मनमुख के चिन्ह ये ने, मनमुख माया मोह है, वह मोह होएगा माया नाल, माया नाल मोहेगा ते माया की खातर सारा दिन काम करेगा, रात को भी ध्यान माया च हुंदा है ते सारी रात उसल वट्टे लैंदा रहेगा, नींद नहीं आउंदी। क्यों? ये मंजे ते पैदा भी ਇਹਦਾ ध्यान माया च, सुरत विच माया, माया माया का मोह इन्ना प्रबल है, रब दे नाम नाल प्यार नहीं लगता, फिर सारी जिंदगी करदे की आ? ये नहीं कहना मनमुख की करदा है, कोई होर की करदा नहीं, मैं की करदा है। अपना मतलब अपने नाल है। जिदन आप मरे लकड़ां दे ढेर च रख के आपां नूं किसे ने साड़ना है, अपने ना किसी होर ने नहीं सड़ना। लेखा जोखा मेरा होना है, हिसाब किताब मेरा होना है, किसी होर दा नहीं होना। दीन गवाया दुनी सुन, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, किते अपने नाल भी इदां ना हो जाए। करदे की आ? कूड़ कमावे, कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। तू तीन चीज़ां वेखणियां ने अगली पंक्ति च, तीन चीज़ां। कमाउणा की है, कट्ठा की करदा है, ते तू खाना की है। कमाउणा की है, कट्ठा की करदा है, ते खाना की है। अच्छा कहते मनमुख कूड़ कमावे, ਉਹਦੀ हर एक तरह की कमाई विच झूठ, झूठ कमाउंदा है। रिश्ते कमा ले, परिवार कमा लिया, घर कमा लिया, दौलत कमा ली, पदवी कमा ली, रुतबे कमा ले, की है? कूड़। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, ये कमाया ना। पातशाह जी ने पूछो भी कूड़ की परिभाषा की है, कूड़ की है? नानक वखाणे बेनती तुझ बाज कूड़ो कूड़। उन्हें आसा की वार च आप सुनिया,
कि मैं करदा, कूड़ कमावे, कूड़ इकट्ठा करी जाना। पागल की निशानी की होंदी है? कमला बंदा तुसीं बाजारां च वेखदे की करदा है? उन्हें कूड़े च हत्थ मारना, कूड़ा इकट्ठा करना, कूड़ा ही वो पल्ले बन के ते लैके तुरिया फिरदा हुंदा है। पागल की निशानी है ना। वो कूड़ा इकट्ठा करेगा, कोई बोतल पन्नी जो उन्होंने पुराना कपड़ा कोई मिल जाए वो गंढ बन के लैके तुरिया फिरेगा। ते आपां ने पागल। ते सतगुरु कहंदे भी जो तू इत्थे छड्ड जाना है, तू वो कुछ इकट्ठा करी फिरदा है, ते तैनूं सियाणा किधरों आखीए। और हुजूर ने कहा बिन नाम है जग कमला फिरै। उत्ते दिमागी तवाजन गवा बैठा ते कूड़ा कचरा इकट्ठा करता है। तो परमात्मा दे नाम तो ही ना, नाम जपण वाली सुरत नूं गवा बैठा ते तूनू आ दुनियावी जो कुछ इकट्ठा करता है गुरमत की निगाह विच कूड़। कूड़ कमाउणा भी है, झूठ कमाउणा भी है, झूठ इकट्ठा करता है और सारी जिंदगी कूड़ करे आहार। तेरा भोजन भी झूठ। की है भोजन? साडा भोजन है दूसरे की निंदिया करनी, अपनी उस्तित सुननी, ये साडा भोजन है। जदों तक करना लईए रज नहीं आता। अपने पल्लों दुखी देनी नहीं, दूसरे की खो लैनी, साडा भोजन आए। आप किसी का सवारना नहीं। जे दूसरे का कोई काम सौर रहा है, सौर दे काम विच विघन पा देना, ये साडा भोजन है। ये साडी खुराक है। ये साडी आदतां साडी खुराक बन गई, ये साडा भोजन है। और ये झूठ भोजन, कूड़ भोजन अखां दे राही, कन्नां दे राही, जुबान दे राही, माड़ी सोचनी दे राही पता नहीं किन्ना क खा रहे हैं। कूड़ करे आहार, फिर की होएगा? जिहदा आहार चंगा नहीं, उहदी शरीर की तंदुरुस्ती ते उहदा असर पेगा, असर पेगा ना। ते हुण आहार की है? आहार है कूड़, आहार है झूठ, आहार है निंदिया, ये सारा झूठ। ते हुण असर की होया? बेख माया धन संच मरै, अंत होए सब सार। कट्ठी करदे 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 कबीर कौडी कौडी जोर के जोरे लाख करोड़ जोड़िया ना, कट्ठा किया ते वक्त अखीर सब कुछ छेती छड़ गया। ते जदों मैं छड़ता ते मेरे वास्ते की होया? अंत होए सब शार, मेरे लिए तो सवाह हो गया ना। चाहे लखां चाहे करोड़ां, अब पिछे करोना च वेखिया ना, लखां करोड़ां लैके लोग घूमते फिरते रहे, जीवन नहीं बचिया, वो पैसा उन्होंने लिए सवाह हो गया। किस काम आया? किस काम आया? जिदन मर गए, दुनिया तो चले गए, तो जो कुछ इकट्ठा करते रहे, चलदे नाल न चले सो क्यों संझी है, तिसका कहो क्या जतन जिसते वंजी है। ये कूड़ हो गया। कर्म धर्म सोच संजम करे, अंतर लोभ विकार। फिर पातशाह महाराज जी ने वेखो, ये पर्दे खोल के रखे ने महाराज जी ने साडे। जिवें किसी डॉक्टर को जाने ना, तो नब्ज फड़ के अंदर दे पर्दे खोल के रख दिंदा, तेनू आ भी रोग आ भी रोग, खोलदा ना पर्दे। तो पुराने वैद हकीम नब्ज वेख के दसदे सी, हुण दे डॉक्टरां दे भी टैसट कराओ, तो जदों उहदी रिपोर्ट दे सब प्रगट हो जाता ना, भाजी आ वेखो आ भी है, आ भी आ भी है, खुल जाता ना पर्दा। मेरा वैद गुरु गोबिंदा साडे अंदर दे पर्दे खोल रहे ने, दस रहे ने। कहते फिर मनमुख की हुशियारी चलाकी वेखो, करदा सारा जीवन झूठ कूड़, ते पर हुण लोकां नूं दिखाउण वास्ते थोड़ा बहुत कर्म धर्म भी करता है, थोड़ा बहुत कर्म धर्म भी करेगा कि लोगों को पता तो लगे कि बंदा धर्मी है। कर्म धर्म सोच संजम कर है, दिखावे की सुचमता भी करेगा, संजम भी रखेगा, धर्म की कर्म भी दिखावे लिए करेगा, पर
हुंदा की है, हकीकत की है। ये अंदरों भेज के करदा नहीं, दिखावे लिए करदा। अंदर की है ये अंदर है, अंतर लोभ विकार, ये अंदर लोभ है। ते जिहदे अंदर आ गया ना लोभ, परमात्मा का नाम विसारन लई उन्होंने कुछ करने की लोड़ नहीं, लोभ ने आपे भुला देना है। लोभ विकार जिन्ना मन लागा हर विसरिया, पुरख चंगेरा लोभ। ते लोभ विच फस के बंदा ऐसा फसदा है, जो कोकर हरकाया धावे दह दिस जाए, लोभी जंत न जानी भाख अभाख सब खाई। लोभ ही लोभ, सब कुछ भुल जाता है। होली निकल के गई है, साडा संबंध होले महल्ले दे नाल है। होले महल्ले नाल बड़ा जिक्र होया प्रहलाद दा। हिंदू वीरां ने रंग पाए, होली साड़ी पिछोकड़ ते दा प्रहलाद तो ही है ना। हुण होलका ते चेते है भी होलका साड़ी है, होलका साड़ो ते रंग पाओ ते चेते है। पर होलका नूं चेते रखिया तो साडा कुछ भी सौरन वाला नहीं। होलका की कथा व्याख्या की सुनिया सुनाया तो साडा कुछ भी सौरन वाला नहीं। हरणाक्ष का जिक्र करके उसकी लंबी चौड़ी गाथा सुन सुना के होली मना ली, ये तो कुछ सौरन वाला नहीं। गल तो सिर्फ ये नहीं है कि प्रहलाद की दृढ़ता वेखो। एक परमात्मा तो बिना प्रहलाद अपने प्यो की भी नहीं मानता। बापू आंदा कि मैं परमात्मा, उन्हें क्या तू मेरा पिता है, पिता होने के नाते तेरा सत्कार बनता है, मैं तेरा पुत्र हाँ, पिता जान के तेरा अदब करांगा, तेरा सत्कार करांगा, ये ठीक है। रब मन के तेनों तेरी पूजा नहीं करांगा। कितनी दृढ़ता प्रहलाद की। हरणाक्ष नूं पासे रहन दिओ, होलिका नूं पासे रहन दिओ, प्रहलाद नूं फड़ो। प्रहलाद वर्गी दृढ़ता आवे, इन्ने कष्ट इन्ने दुख सह के भी वो एक ते आस रखी बैठा। तो की आंदा, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मैं नहीं छड़ता। उसका रूप ही बदल लिया, कुछ होर कर लिया। हुण एक बेनती भी, होली जिहड़ी रंग तो बिना मनाई जा सकती है। होली हुण आपां जिउं पिछले 2-3 दिनों तो शुरू होया हैप्पी होली हैप्पी होली। हुण फोन च रंग नहीं आ सकता, रंग की फोटो तो आ ही सकती है ना। तो पिचकारियां दियां रंगां दियां फोटो भेज भेज के हैप्पी होली हो गई। रंग तो बिना जे होली नहीं हो सकती तो साडी होली नहीं है, साडा तो होला महला है। तो होला महला सिर्फ मैसेज भेज के या हैप्पी होला महला करके नहीं होला होना। शस्त्र तो बिना होला महला नहीं हो सकता। चेतवदी एक संमत 1757 ਨੂੰ कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती ते जेड़े मेरे हजूर दे 5 किले बनाए ने, उन्हां 5 किलियां चों एक किला जिस किले का नाम ही है होलगढ़, उत्थे महाराज जी ने दीवान सजाया ते होला महला बख्शिश किया। मशनूई जंग 2 जत्थे बना देंदे ने पातशाह, एक जगह दस देंदे ने तुसी इस जगह ते कब्जा करना, तुसी रोकना। जिहड़ा जित जांदा सतगुरु नूं इनाम बख्शिश कर दे। गुरु दे सूरमे सतगुरु जी दे सन्मुख शस्त्र विद्या का अभ्यास जो उन्होंने कमाया वो प्रदर्शन करते। नेजेबाजी हुंदी, घोड़सवारी हुंदी, गतके खेडे जाते, तीरां दे निशाने लाए जाते। तो हुण वो होले महल्ले का रूप की रह गया। जिवें होली तो बाकी सब गल्लां छड्ड के प्रहलाद वर्गी दृढ़ता चाहिदी सी, वो छड्ड के इस तरह आपां होले महल्ले नूं लै लिया। होला महल्ला तां संपूर्ण है जो गुरु का सिख शस्त्र नाल जुड़िया। ते कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने 14 जंगा कीतियां, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने 4 जंगा कीतियां ते जंगा जितियां। ते किस तरह जितियां? शस्त्र दे नाल। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की शांतमई शहीदी नूं वीर रसी विच बदलता।
गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने हाथ में शस्त्र दे के, ये सानू दोनों चीज़ां महाराज जी ने दित्तियां, शस्त्र भी ते शास्त्र भी, विद्या भी ते शस्त्र भी। ते हाथ जोड़ के बेनती अज साडे कोल दोनों दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। ना विद्या रहेगी, ना हुण साडे अगे बच्चे पढ़न नूं तैयार ने, बड़ा औखा हो गया। जदों दा आ सिस्टम आया भी आईलैट्स करो तो बाहर, साडे न्याणे तो बाहर भी नहीं टपदे। 12वीं करो तो आईलैट्स करो तो बाहर, जिन्हों पुछ लो आई कुछ है। पिंडा च खास करके बच्चे नूं पुछो भी की तैयारी है, पुत की करना है, धी नूं पुछो की तैयारी है, आई तैयारी है। 12वीं करनी है, आईलैट्स करनी है, फिर कनेडा आस्ट्रेलिया, कनेडा आस्ट्रेलिया। ना पढ़ाई रह गई, ना शस्त्र रह गए। और सानू तो हुक्म है, शस्त्र के अधीन है राज, जो ना तरह तिस बिगड़े काज। या ते सर्व खालसा सुनिए, शस्त्र धरबो उत्तम गुणीए। ते ताई पातशाह जी ने कृपा की, अस कृपाण खंडो कड़क तुपक तबर अर तीर, सैब सरोही सहती, यह हमारे पीर। तीर तू ही, सहती तू ही तबर तलवार, नाम त्योहारो जो जपे भय सिंध पाव पार। काल तू ही, काली तू ही तेग अर तीर, तू ही निशानी जीत की, आद तू ही जगबीर। अज ना रह गया। इत्थे एक निमरता सहित बेनती, कलगिया वाले पातशाह महाराज जी के 4 साहिबजादियां का आपां जिक्र करते हैं और बड़े प्रभावित हाँ, और संसार प्रभावित है उन्हों की शहीदी तो, उन्हों के जज्बे तो, उन्हों की बहादुरी तो। दुनिया शश करती, सच है ना। बस विचारना है भी कलगिया वाले पातशाह जी ने अपने साहिबजादियां नूं की सिखाया सी। कलगिया वाले पातशाह जी के 4 सपुत्र, 4 साहिबजादियां ने की सिखिया? भंगड़ा कि गतका? ये निर्णय आप करना। हुण आपां कहंदे सिੱਖੀ का प्रचार नहीं हुंदा जी, सिੱਖੀ का प्रचार नहीं हुंदा। देखो जिहड़ी जिथे कमी होवे ना, आपां नूं ईमानदारी दे नाल मननी पैगी। प्रचार की बाहर कोई कमी नहीं, बहुत प्रचार हो रहा है, जरिए बहुत आ गए, सोशल मीडिया इंटरनेट का जो है प्रचार बहुत हो रहा है। पर हाँ, जे नहीं प्रचार हो रहा ना तो साडे घर विच नहीं हो रहा। जे नहीं प्रचार हो रहा तो बच्चे की माँ नहीं प्रचार कर रही, जे नहीं हो रहा तो बच्चे का प्यो नहीं कर रहा। बाहर तो प्रचार बहुत है। जे बच्चे ने पग नहीं बधी, वो सिर ते टोपी पाउंदा है, तो किहड़े प्रचारक की लोड़ है? उत्थे उत्थे पिता की लोड़ है, पुत टोपी नहीं, दस्तार सजा। उत्थे प्यो प्रचारक बने, प्यो प्रचारक बने। प्यो प्रचारक होवे ते बच्चा आखे मैं भंगड़ा सीखना है, तो प्यो आखे ना ना पुत, असीं भंगड़े वाले नहीं, असीं नचारां दी कौम नहीं, असीं सरदारां दी कौम आ। साडा भंगड़ा नहीं, साडा गतका है। ते गतका किते फ्री भी सिखाया जाता होवे ते असीं निआणिआं नूं नहीं भेजना, ते भंगड़ा कोलों पैसा दे दे के, फीसां दे दे के निआणिआं नूं सिखाउने आ। कित्थे कमी है? ये परिवार विच कमी है, माँ च कमी है, प्यो च कमी है। तो होला महला कलगिया वाले पातशाह जी ने बख्शिश किया, तो गुरु की लाडलियां फौजा निहंग सिंह जथेबंदियां जिन्होंने गुरु की बख्शिश की, हर एक उस विरासत नूं संभाल के रखे, संभाल के रखे। घोड़सवारी, नेजेबाजी, शस्त्र विद्या, गतके खेडे जाने, उस शस्त्र विद्या का प्रचार, शस्त्र नाल प्यार करो। अपने घर में चंगे तो चंगा शस्त्र जरूर रखो, लाजमी है। अपने बच्चों को नचना टपना भंगड़ा ना सिखाओ, नचार ना बनाओ, उन्होंने सरदार बनाओ। जे सरदार बनाना है तो सरदार वो बनेगा जिद को दस्तार होएगी, सरदार वो होएगा जिद को केस होंगे, सरदार वो होएगा जिद को शस्त्र होएगा, सरदार वो होएगा जिदे गातरे कृपान होएगी। जो कई बार इत्थे पंजाब तो जां होर भी किते आउंदे ने ते सरदारी वाली तो गल कोई दिखती नहीं, तो जो गल करते हैं तो उन्होंने शक्ल वेख के तो हिंदी च दसीदा, बोलीदा,
तो फिर वो हस के आखणगे जी असीं पंजाबी हुंदे आ, सरदार हुंदे आ, निशानी तो है कोई नहीं। तेरी टोपी वेख के पता लगे भी तू सरदार है, किद्दां पता लगे? दस्तार होवे तो पता लगे, केस दाढ़ी होवे तो पता लगे। ये सारा कुछ खत्म कर लिया तो हुण दस्सण नूं की रह गया? हुण गड्डियां दे पिछे लिखाउणा पिया पुत्त सरदारां दे। वाह, क्यों निशानी तो बची कोई नहीं। गड्डी चों 10 जने निकलने, सारे मोने, ते सरदारी कित्थों दिखे? सरदारी दिखनी सी किरदार चों, सरदारी दिखनी सी दस्तार चों, सरदारी दिखनी सी लिबास चों। ये तो कुछ भी ना पल्ले रहा। ते बन की गए? नचार बन गए, नचार। अज तुसीं वेख लो, विआह शादियां अपने घरां च हुंदियां ने ना, ढोल वजदे ने, डीजे लगदे ने, नचना सारिआं नूं आउंदा, नचणगे सारे। तुसीं फरी सोटी किरपान ढाल रख दिओ, गदका किसे नूं नहीं आउंदा। गदका प्यार रहा, सारा कुछ विसारदा। ना शास्त्र रहा, ना शस्त्र रहा। तो सिंह साहब बेनती कर रहे सी भी रहिंदी खूंदी कसर आप भी कढ़ी जाने आ भी जेड़ा कोई दसवंध माया दिंदा है आप उन्होंने भी रोकते हैं। आप ना देहे चिरू पर पानी ते निंदे जे गंगा आनी। उधरों भी गए। और मर्यादा च बचन दसवंध गुरु ना देवई, झूठ बोल जो खाए। कहे गोबिंद सिंह लाल जी तिसका किश ना बसाए। गोलक रखे नाही जो छलका करे व्यापार। कहे गोबिंद सिंह लाल जी भोगे नरक हजार। यदि शुरुआत हाथ जोड़ के बेनती, बाहर छड्डो, अपने घर विच वेखो। एवें नहीं रौला पाई जाइदा प्रचार नहीं हो रहा, नहीं नहीं, अपने घर विच वेखो प्रचार हो रहा कि नहीं हो रहा। तुहाडा बच्चा पंजाबी बोलदा है, जे वो बोलदा है तो घर च प्रचार हो रहा है। जे परिवार दे जी नहीं बोलते, तुहाडे परिवार विच प्रचार नहीं हो रहा। प्रचार की कमी तुहाडे परिवार विच है। बच्चों ने केस कतल किए ने, टोपियां पाउंदे ने, तुहाडे प्रचार विच कमी दी, प्रचार की कमी है परिवार विच। माँ प्रचारक बने, प्यो प्रचारक बने, दादी प्रचारक बने, और बीबिया ने तो प्रचार करके दसिया। माँ गुजरी ने ठंडे बुरज विच अपने पोतरे साहबजादियां दे नाल अत दियां सर्दी दियां रातां गुजार के की कीता? प्रचार कीता, प्रचार। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी की दास्तान, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी पोतियां नूं सुनाई। वो की सी? प्रचार। ये प्रचार की लोड़ है। माई भागो ने की कीता? प्रचार किया। तुसीं गुरु तो बेमुख हो के आ गए हो ना, तुसीं घरां च नहीं वड़ना, की सी? प्रचार। अज अपने घरां विच सानूं प्रचार की लोड़ है। माँ बच्चों नूं प्रचार करे, तो माँ बच्चों नूं प्रचार किहड़ी माँ करेगी? जिहड़ी आप नितनेम करती है, जिहड़ी आप बाणी पढ़ती है, जिहड़ी आप गुरु घर जाती है। तो जिहड़ी माँ आप शौक नाल टीवी की पुजारी होवे, शौक नाल हिंदी बोले, वो माँ की प्रचार करेगी? वो प्यो की प्रचार करेगा? इसलिए गुरु नानक दा हर एक सिख प्रचारक है, हर एक सिख। गुरु नानक दे सिद्धांत दा जिहड़ा सब तो पहला प्रचारक है ना, वो साडे वर्गा नहीं सी, वो तुहाडे वर्गा सी। व्यापार करदा होया प्रचार करदा सी भाई मनसुख। एक्सपोर्ट इनपोर्ट का उस वेले उहदा काम इन्ना अमीर, वो प्रचारक सी। सिंगला दीप राजे शबनाब कोलों ने जाके प्रचार किया। ये प्रचार की कमी है अपने घर विच, परिवार विच, धीआं पुत्तां नाल, भैण भरावां नाल बैठ के। हुण कीता कि कर्म धर्म सुच संजम करै। बाहरों दिखावे लिए थोड़ा कुछ कर लिया। झौर साहब जी ने एक बड़ा प्यारा बचन किया भी सिख अज एक गुरु का रह ही नहीं गया। सिख दे ते टकाने बड़े हो गए, कोई अन्न दा, कोई धन दा, कोई पहाड़ां वाली रन दा, विच ढोल ढमक्का सरवर दा ते हेड़ सबाबे नानक दी। होले महल्ले ते आनंदपुर साहिब भावें ना गए होण,
ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਲੋਭ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਹਿੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਵੀ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਰਹਿਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਏ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਨ ਦੋ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਹਰਾ, ਇਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਗ ਨਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਾਗ ਨਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਗ ਨਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮੁਨਸਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਲਾ,
घर विच भांडे खाली, टुटा जिहा मंजा, ते मैं वेख के आया भी तुहानूं कुछ दे देवां। फिर तूं की देगा? आ हीरे मोती जवाहरात तैनूं ये कित्थों मिलिया? ये राज भाग तैनूं किहने दिता? गुरु रामदास महाराज ने। ते जे तैनूं गुरु रामदास महाराज ने इन्ना कुछ दिता ते मैं गुरु दे घर दा कीर्तनी हां कि मैनूं गुरु कुछ नहीं देगा? गुरु कुछ नहीं देगा। गुरु ने मैनूं बहुत कुछ दिता पर तैनूं दिखिया नहीं। तैनूं गुरु ने बाहरी दौलत दिती है, मैनूं गुरु ने अंदर दी दौलत दिती है। प्रेम दिता है, बाणी नाल प्यार दिता है, सत दिता है, संतोख दिता है, उन्हें कीर्तन की दात दी है। ये दौलत तो इत्थे ही रह जानी है, तो छड़ के मेरे को टुटी मंजी मैं तां भी नहीं रहना, तेरे को राज भाग है, मर तू भी जाना है। ते अगे जय मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। गुरु रामदास महाराज ने मैनूं वो दात दी है। केवल रागनाद नहीं, इन्हां दे नाल ओदी रजा दी समझ नहीं आउंदी। नानक हुक्म बूझे तिना रास होए, सतगुर ते सोझी पाए। जिहड़ा गुरु दे हुक्म नूं बुझ लैंदा है ਉਹਦਾ जीवन सफल हो जाता है, जीवन सौरन का कारज रास हो जाता है। हुक्म रजाई चलन का वो आदि बन जाता है, उसका सुभाव हो जाता है। और ये सोझी है समझ कितों आउंदी है? गुरु कोलों। सब किश तिस ते होया जो तिसै दी रजाई। वो फिर गुरु का प्यारा सारी जिंदगी की आपां की करते हैं? मनमुखी करदा आपां करते हैं मैं कीता मैं कीता मैं कीता, आपां मैं करते हैं मैं कीता। ते जिहड़ा गुरमुख हो जाता वो कहता नहीं मैं की करना। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, मैं की कीता? नहीं। सब किश तिस ते होया, वो इन्ने आनंद विच जो कीता गुरु ने कीता, भला कीता, गुरु ने कीता, गुरु गुरु कीता, गुरु ने कीता। मैं कुछ भी नहीं कीता, गुरु ने कीता। वो हर एक गल विच गुरु नूं सन्मुख रखदा है। ते गुरु गुरु करदियां तू कीता, तू 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 तेरा तेरा तेरा, किस मुकाम ते पहुंच जाता है? तू तू करता तू हुआ मुझ में राह न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। सब किस तिसते होया जो तिसै दी रजाए। नाम जपण वाला फिर ओदी रजा विच तुरदा, ओदी रजा विच। ते जो आनंद जीवन का जो सुकून ओदी रजा विच है ना, वो किते होर नहीं है, आप हदूरे चल के नहीं। अखीर होना भी हो जो ओदी रजा है, ओदी रजा तो बिना होना भी कुछ नहीं। सबनी छालां मारियां करता करे सो होए, होना वही है जो उन्हें करना है। एवें बंदिया तू मैं मेरी मेरी करी जाना। गुरु कृपा करे दुनियावी झूठी शोभत तो 4 दिनों की इस झूठी माया की रंगत उहदे प्रभाव तो बच के गुरु के शब्द नाल स्नेह करके, गुरु के सिद्धांत नाल प्यार करके, साबत सूरत शस्त्रधारी बाणी बाणे दे धारणी हो के गुरु गुरु करके अचारक दिनों की जिंदगी बतीत करिए। गुरु गुरु करदे जीवन बतीत करांगे, फिर की होएगा? ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। भुलां दी खिमा जी। सारियां दा हार्दिक धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।